today we are in Lexicon Mile. Mr. Neeraj Sharma sir, Vice Chairman Lexicon Group. Please tell me something about this college. How is this college? What is the vision, mission? हमारे इस इंस्टीट्यूट में सब मिला के right from KG to PG whole process. We've got 50,000 students studying with us. And apart from this institute, I'm also into multiple businesses. कुछ मेरे businesses हैं जिसमें मैं मीडिया में हूँ. So there is a newspaper that I've acquired from Times of India. And that newspaper in Pune is called Pune Times Mirror. तो मीडिया में हम हैं, मीडिया के अलावा बेबी प्रोडक्ट्स में हैं, उसके अलावा एजुकेशनल टॉयज़ में हैं, लीगल एग्रीगेटर फर्म्स हमारी हैं, तो मल्टीपल बिजनेसेस हैं हमारे. और बट वो एक पार्ट है जो बिजनेस का पार्ट है. बट एजुकेशन जैसे आपने पूछा, तो एजुकेशन इज़ मोर ऑफ पैशन हमारे लिए है. तो मेरे फादर हमेशा कहते हैं मुझसे कि अगर आपके पास जब बच्चा पेरेंट छोड़कर जाता है तो वो जो बच्चा है, आप एक पेरेंट जो ना बड़े ईमानदारी से, बड़े मेहनत से, बड़े चाव से और बड़ी उम्मीद से अपना जो एसेट है आपको सौंप के जाता है, अपना बच्चा आपको सौंप के जाता है और कहता है कि सर इसको आप कुछ बना देना जी. तो जब पेरेंट ये बोलता है इसको कुछ बना देना, और अगर आप उस बच्चे के साथ जस्टिस ना करो, अगर आप उसको पढ़ाओ ना, लिखाओ ना, उसको एक अच्छा इंसान ना बनाओ, एक अच्छा प्रोफेशनल ना बनाओ, तो क्या by the end of the day will you be able to look at yourself in the mirror? I think this is what my father says, that अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जो कुछ काम आप करो, end of the day you should be able to look into your mirror, look into your eyes and say what I'm doing is right. I'm not doing anything wrong with anybody. I think that is the ethos of or the foundation of building this institute. So these students who come to us, we add a lot of value to them. We ensure that they are doing well in life. We ensure that we work on basic concepts of theirs like hard work. बोलने की बातें, ये किताबी बातें लगेंगी, but ये किताबी बातें नहीं हैं, because like I told you, I've built up so many businesses, and these businesses were built basis these foundations that I'm talking about. So like I said, the foundation that we also inculcate into our students who come to our institutes is, one is hard work, one is passion, dedication, ईमानदारी होनी चाहिए. So ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे मैंने कहा कि किताबी लगेंगी, बट किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए these are the most essential ingredients. Yes. So ये ethos है. इस वजह से हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं और बड़ा मजा आता है बच्चे. थोड़ा सा एक शॉर्ट में अगर समझने की कोशिश करें, हाउ दिस institute is different from other institutions, because there are many institutes in Korea. So if the student is searching for the admission after CAT, MET or ZET examinations, so ऐसा क्या हम बोल सकते हैं कि भाई इसमें हमारे पास ये कुछ है बाकी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट से बेहतर? So हमारे पास जो है, जो बेटर है, सी एंड ऑफ द डे जैसे आपने कहा कि मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा इंस्टीट्यूट से जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा इंस्टीट्यूट बेटर कैसे है. मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट खराब है, मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि मेरे इंस्टीट्यूट में अच्छा क्या है. सो मेरे इंस्टीट्यूट में जो अच्छा है, मेरी जो फैकल्टी है, दे आर द हार्ट ऑफ माय इंस्टीट्यूट. They are the ones who impart knowledge. They are the ones who impart skills. They are the ones who turn around a student from where they come, and when they leave the campus and when they get into the corporate world, these faculty are the ones who make the difference. So that is the game changer. My faculty is a game changer. My faculty is my USP. My faculty is everything that makes it happen for the students. So यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन और होता है, जैसे आपने बोला फैकल्टी आपकी मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स है. क्या ये फैकल्टी वो है जिसको वर्क एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट में पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है या कॉर्पोरेट में जॉब करने का भी एक्सपीरियंस? आज की डेट में जब आप अच्छी फैकल्टी बोलते हो, तो अच्छी फैकल्टी का मतलब ये होता है कि they have to be industry, because they want to make the students industry ready. तो जब उनको खुद को नॉलेज नहीं होगी तो वो बच्चों को इंडस्ट्री रेडी कैसे करेंगे? सो इस सवाल का जवाब बिल्कुल यही है कि हमारी जो फैकल्टी है वो इंडस्ट्री से आती है, प्लस एकेडमिया का उनका एक्सपीरियंस होता है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू ऑफ दैट. उसके अलावा हम ये भी करते हैं, बिकॉज क्या होगा कि अगर एक फैकल्टी एक कॉर्पोरेट से आती है और से 10 साल एक फैकल्टी ने कॉर्पोरेट में काम किया और उसके बाद वो फैकल्टी एकेडमिया में आ गई और 10 साल एकेडमिया में काम कर लिया, तो 10 साल पुराना जो कॉर्पोरेट का ज्ञान था वो तो खत्म हो गया. So what we do with our faculty is we keep sending them for internships. We keep sending them to corporate back. Okay.
so that we can train them, and that same knowledge then can be imparted to the students. So there is a bridge that we keep building between the faculty's past experience, current experience, and experience for the future. तो शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इसी तरह से हमारा करिकुलम भी डिजाइन होता होगा इसी से। बिल्कुल हमारा करिकुलम ऐसे डिजाइन होता है। फॉर्चुनेटली वी आर इनटू PGDM कोर्स, सो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास ऑटोनॉमी है टू क्रिएट आवर ओन करिकुलम, अनलाइक अ यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड प्रोग्राम, where in a university affiliated program the curriculum does not change for years and years together. Here in this institute we have the liberty, obviously there is a process, it has to go through an academic council and so on and so forth, but we change the curriculum by the need of the hour. According to the needs and demands of the industry. 100%. According to the needs and demands of the industry, we change the curriculum, and we've been doing that in the past as well, many a times. Any new specialization in the coming future we are saying means from the past years we have seen specialization जैसे marketing, finance, IT, operation, HR. क्या इसके अलग भी हम कुछ स्पेशलाइजेशन देखे हैं हमें या भी हमारे पास ऐसा है? अभी तो हमारे पास बिजनेस एनालिटिक्स एक स्पेशलाइजेशन है, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल दैट वी हैव व्हिच इज मार्केटिंग, एचआर, लाइक यू सेड, सो बिजनेस एनालिटिक्स है। बट यू नो कुछ नया करने की चाह में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेप्थ भूल जाते हैं। So whether it is marketing or finance or sales or logistics or HR or business analytics, I think it is important that we as institutes take this oath for ourselves that we should be doing a deep dive in what we want to teach our students. The moment आप एक it's like a ailment, like अगर कोई बंदा अगर बीमार है, अगर आप उसकी सिर्फ ऊपर सतह से अगर आप उसको इलाज कर दो तो वो इलाज होगा नहीं, राइट? सो यू हैव टू फाइंड द लोकेट द प्रॉब्लम व्हिच इज डीप विद इट, व्हाट यू सी फ्रॉम आउटसाइड। अगर आपको बुखार है तो मैं हाथ लगा के देख सकता हूँ आपको बुखार है, बट एक्चुअली वो बुखार का कारण क्या है? So all our specializations, we have to ensure that we do a deep dive with our students. We take them into the research aspect of the curriculum. We take them into findings and data collection of the curriculum. We get them into problem solving of particular issues in that particular stream, which will give them a 360-degree development, which is important. Do we have the good ROI there? ROI का full form है return on investment. Yes. तो आप ये कह रहे हो कि अगर आपने 10 लाख रुपए फॉर एग्जांपल आपने फीस दी, राइट? तो 10 लाख रुपए आपने अगर फीस के लगाए हैं तो आपको उसका रिटर्न जो है वो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? आपको उसका रिटर्न जो है आज मिलना चाहिए, कल मिलना चाहिए। मेरा मानना ये है देयर इज सी ROI हैज टू बी कैलकुलेटेड इन लॉन्ग टर्म। सो ROI ऐसा नहीं है कि मैंने आज 10 लाख रुपए लगाया। आप इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करते हो तो अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो बैंक में भी आप रखते हो तो आप FD अगर करोगे तो FD आप 2 साल करोगे, 5 साल का करोगे, 10 साल का FD करोगे, उसके बाद आप रिटर्न चेक करोगे। तो आप जब ये पैसा लगाते हो, ये आपका एक FD है जो आपने कॉलेज को दिया है। तो ये जब आपने FD कॉलेज को दिया है, ये जो पैसा आपने फीस भरी है, ये फीस का जो रिटर्न है आपको ड्यूरिंग द इयर्स आपको मिलेगा। आपकी जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है, आप जो यहाँ से सीख कर आए हो, that will help you get a job in your first organization, but then from there how you will grow, from where what organization will you get to, for that matter even the first organization that you will get, that a lot depends on what you learn here. So your ROI is spread across your life, so your learnings that you're getting in an institute today is spread across your tenure of life that or tenure of your business that you are into. You mean, sir, we cannot calculate the ROI process in terms of money only? It is not. In terms of money, how will you calculate your ROI? Because अगर in terms of money ही करना है तो आप मुझे ये बोलो कि मैंने इतना पैसा लगाया, मेरे को इतना पैसा रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है, बट उसके बदले में मैं आपको एक अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाऊंगा, उसके बदले में मैं आपको एक प्रोफेशनल बनना नहीं सिखाऊंगा, उसके बदले में मुझे जो आपको स्किल्स देने हैं वो नहीं दूंगा। मैं आपको ये भी कर सकता हूँ कि अगर आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको 2 साल बाद उसको मैं आपको 15 लाख 20 लाख करके देती हूँ। बट इज दैट व्हाट यू वांट? नो नो सर। आप तो सीखने आए हो ना, आप एक इंस्टीट्यूट में आए हो, आप पढ़ने आए हो, आप लिखने आए हो, आप समझने आए हो, दुनियादारी समझने आए हो, तो उसका ROI आप कैसे कैलकुलेट करोगे? और वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो जान है वो हमारी फैकल्टी को, आपको जो पढ़ाई मिलेगी, आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, आपको जो ज्ञान मिलेगा जो आपको चाहिए, आप मानो या ना मानो आपको ज्ञान चाहिए,
so that you will get from here and that will be calculated in the long term. एक और छोटा सा क्वेश्चन, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बिकॉज मेरे को सुनने में आया था कि वी आर गोइंग फॉर द यूनिवर्सिटी आल्सो। जी बिल्कुल। सो नेक्स्ट 3 इयर्स में हमारी यूनिवर्सिटी की तैयारी शुरू है। सो नेक्स्ट 3 इयर्स में बाय 2028 वी विल बी लॉन्चिंग अ यूनिवर्सिटी। सो काफ़ी सारा हमारा काम हो चुका है, द यूनिवर्सिटीज इन द पाइपलाइन, तो वो तो ज़रूर होगा। और उसके अलावा भी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि रेगुलर बेसिस पे हम करिकुलम भी चेंज करते हैं, नया प्रोसेसेस भी डालते हैं, नई चीज़ें इंकलकेट करते हैं। आज हमने एक नया फ्लेक्सीप्रेन्योर भी हमने आज लॉन्च किया एंड वो जो एक प्रोग्राम है दैट इज़ एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। तो ऐसा नया नया काम हम करते रहते हैं और बच्चों के साथ हमारा समय बीतता है, अच्छा बीतता है, मज़ा आता है। One piece of advice for those students who are looking for admission in Lexical Mile, because this video is shooting for the students those who are looking for admission in Lexical Mile or other institute. They have given your CAT, MAT, ZET examination. Maybe possible they are getting good marks. Maybe possible they are not getting good marks in their CAT examination. So one piece of advice to those students. I'll tell you, for any student that wants to come to Lexicon, should only come to Lexicon if you want to become a great professional, if you want to become a skilled entrepreneur or an intrapreneur. This is a place for you. This is a place which will teach you to become a good human being and a professional human being. अगर आप ये लेने आना चाहते हो तो आप लेक्सिकन में आइए। प्लेसमेंट आपको 100% मिलेगी, बिकॉज प्लेसमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ जो आपको यहाँ पढ़ाई हो, तो आपको प्लेसमेंट मिलेगी। आप अगर सिर्फ प्लेसमेंट लेने आ रहे हो तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, प्लेसमेंट एजेंसी में जाना चाहिए, इंस्टीट्यूट में नहीं आना चाहिए। बट अगर आप कुछ पढ़ने आ रहे हो जिसका बाय प्रोडक्ट प्लेसमेंट होगा तो लेक्सिकन जैसी आपके लिए जगह नहीं। Thank you, sir. Thanks a lot. So this is Neeraj sir, Vice Chairman Lexicon Group. If you do have any query regarding anything about admission in Lexicon Mile, you do have my number on the screen 9891898289. कभी भी कॉल करिए। कॉलेज के बच्चों से बात करना है या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए लेक्सिकन माइल के लिए, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं, if you want to fill the form directly from the website, you can go to the website and directly fill the form. Thank you. Thanks sir.